Good morning, children. Welcome to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing good. So, shall we start with today's EVS class? So, students, in last class, we have started with the new chapter from your EVS textbook. The name of the chapter is Our Earth. So, under this chapter, in last class, we have covered the topics like few facts related to planet Earth, and in that we have covered that Earth has two parts. One is land and other one is water. Okay, Earth, our planet Earth is divided into two parts. One is land and other one is water. And then we have discussed that Earth is the third planet from the sun. Then also we have discussed one fact about the Earth is that Earth is the only planet in the solar system which has life on it. हमारा जो ये planet Earth है ये एकमात्र ऐसा planet है पूरे सोलार मंडल में या पूरे सूर्य मंडल में जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है. ओके, then our Earth has the atmosphere around it. Atmosphere means what? Atmosphere means the Earth is surrounded by the layer of air. That layer of air is called atmosphere. ये जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ एक एयर की लेयर बनी हुई है या गैसेस की लेयर बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? Atmosphere. And Earth's atmosphere contains gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. सो ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन से गैसेस होते हैं? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. सो ये जो अदर गैसेस है उसका मतलब हुआ कि जैसे मैंने ओजोन के बारे में बताया था ना कल वाली क्लास में, ओजोन, ये सारी बाकी छोटी मोटी गैसेस हैं जिनका परसेंटेज बहुत ही कम है. ओके, फिर हमने फैक्ट में सीखा था कि roughly 71% of our earth's surface is covered by the water and most of this water is in the ocean. ये जो अर्थ है उसके ऊपर का जो 71% हिस्सा है वो पानी के नीचे ढका हुआ है और उसमें से ज़्यादातर पानी किस में है? ज़्यादातर पानी समुंदर में पाया जाता है या ओशन के अंदर पाया जाता है. मतलब कितना? जो अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसमें का 98% ऑफ वाटर इज़ इन दी ओशन. जो हमारी अर्थ है उसमें जितना भी पानी पाया जाता है उसमें का 98% पानी समुंदर में पाया जाता है. मतलब वो क्या है? सॉल्टी वाटर है. वी कैनॉट ड्रिंक दैट वाटर. ओनली 2% ऑफ दैट वाटर वी कैन यूज़ फॉर ड्रिंकिंग. जो 2% वाला पानी है वही फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, and the last fact which we discussed in the last class was Earth's atmosphere is made up of oxygen and it is been produced by the plants. And about 1/5 of Earth's atmosphere contain which gas? Oxygen gas. Okay, then we have discussed about the natural things like लैंड फॉर्म्स है ना. नेचुरल थिंग्स में आता है ना लैंड फॉर्म्स, हिल्स, वैलीज, माउंटेन, प्लेट्यूज, plains. These are the different types of landforms and they are also known as natural things. Then we have discussed about the water bodies, lakes, ponds, rivers, seas and oceans. They are known as the water bodies. They all contain water or they are also known as the water sources. They are also the natural things. Why they are known as the natural things or what is mean by the natural thing? The natural things are those things which are gifted to us by the nature and we the human beings cannot create these things on our own. ये जो चीज़ें हैं वो हम मनुष्य अपने आप बना नहीं सकते क्योंकि ये नेचर से ही आई है. हम लोग उनको बना नहीं सकते. वो हमारे बनाने की सोच से और ताकत से बहुत परे है. ओके, now we will discuss remaining topics from the chapter. The areas which are completely covered with green trees are known as forests. Okay, so children, what do you mean by forest? जंगल किसे कहते हैं? So forest are the
those areas which are completely covered with the green trees. So फॉरेस्ट या जंगल ये एक ऐसी जगह होती है जो पूरी तरह से हरे भरे पेड़ों से कवर्ड होती है, ठीक है। ऐसी जगह को हम बोलेंगे जंगल या फॉरेस्ट। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग लिविंग and as well as non-living things. So this nature, mother nature, has provided us so many useful things including living as well as non-living things. जो ये नेचर है इसने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, तोहफे दिए हैं। उनमें से कुछ कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स मतलब द थिंग्स विच कैन take food, which can breathe, which can grow in size and shape. They can move also. Some living things can move, okay, and these things are known as living things. And non-living things are those things which cannot move, they cannot breathe, they cannot grow in size, and they don't need फूड, ओके। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिविंग थिंग्स? द एग्जांपल्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर जैसे ट्रीज, एनिमल्स, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे जैसे जो एनिमल्स है, एलिफेंट, हम वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो दी वन काइंड ऑफ एन एनिमल ओनली, ओके। तो ये सारे हो गए लिविंग थिंग्स। ट्रीज है ना, दे ऑल आर दी लिविंग थिंग्स। बट द माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, हिल्स, they all are known as non-living things. Next, plants, animals, birds, fish and human beings are natural things. So ये जो है plants है, animals है, birds है, fish है, हम लोग भी human beings, we all are the natural things because ये सारी हमें nature से मिली हुई चीज़ें हैं. We all cannot create these things by our own. हम प्लांट्स को क्रिएट कर सकते हैं क्या? फॉरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं क्या? जंगलों को नहीं। जंगल जो है वो नेचर से ही हमें गिफ्ट मिला हुआ है। हम जंगल तैयार नहीं कर सकते, ना हम एनिमल्स तैयार कर सकते हैं, ना हम बर्ड्स को तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नेचुरल थिंग्स के अंडर आती हैं। Next, certain non-living things like mountains, rivers, clouds, rain are also natural things. तो ये तो थी living natural things, plants, animals, birds, these all are the living natural things. But certain non-living things like mountains, rivers, clouds, rain are also known as नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स। क्योंकि माउंटेन नॉन लिविंग है, रिवर भी नॉन लिविंग है, क्योंकि इनको ना खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, ना उनको ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ना ये अपने शेप और साइज़ में बढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए उनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। और ये नॉन लिविंग थिंग्स होके भी नेचुरल थिंग्स भी है। नेचुरल थिंग्स मतलब जो हमें नेचर से मिली हुई चीज़ है उनमें आते हैं, ओके। These things are the gifts of nature. Remember, we cannot make these things ourselves. So as I have told you earlier, these all are the gifts from nature to us and we all cannot create these things by ourselves. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें नेचर से गिफ्ट मिली है और हम इन चीज़ों को बना नहीं सकते. Next, man-made things. Now we will move on to the next thing, that is man-made thing. अभी हमने natural things के बारे में डिस्कस किया. Natural things में क्या क्या था? लैंड फॉर्म्स थे, वाटर बॉडीज़ थे, लैंड फॉर्म्स थे, वाटर बॉडीज़ थे, फिर फॉरेस्ट भी नेचुरल थिंग में आता है, और क्या था? एनिमल्स लाइक लिविंग थिंग में क्या कौन से थे? नेचुरल थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, ह्यूमन, दे आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल थिंग्स ओनली. एंड नॉन लिविंग थिंग्स में कौन से थे नेचुरल थिंग्स? Mountains, rivers, clouds, rain, they are also known as the natural things, but they are non-living. Now we will discuss about the man-made things. So man-made things, from its name only you can guess what is meant by the man-made things.
देयर आर मैनी थिंग्स विच आर मेड बाय मैन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बना सकते हैं। मैन मतलब हम लोग, human beings, they are called man-made things. So the things which can be made by the human beings, these things are known as the man-made things. Man has made things to satisfy its needs. तो हम लोग जो है हमारी जो जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो हम क्यों चीज़ें बनाते हैं? जो हमारी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो जैसे व्हाट आर आवर बेसिक थिंग्स और व्हाट आर आवर बेसिक नीड्स। आवर बेसिक नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, है ना। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, दीज आर आवर basic needs, and to satisfy all these needs we create few things. जैसे कि we need food, that is why we cook some food at home, है ना। हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है तो हम खाना बनाते हैं। तो जो हम खाना घर पे बनाते हैं, सपोज रोटी बना ली, सब्ज़ी बना ली, तो दैट इज़ मैन मेड थिंग। देन वी नीड शेल्टर, दैट मीन्स हमें रहने के लिए जगह चाहिए होती है। दैट इज़ वाई वी क्रिएट हाउसेस, है ना। हम घर बनाते हैं, दैट इज़ वाई वी बिल्ड आवर हाउस, वी बिल्ड बिल्डिंग्स, स्कूल्स, लाइक दिस स्ट्रक्चर्स वी बिल्ड फॉर आवर to satisfy our needs. So these things are the man-made things. Then we need clothes, है ना। These all are the basic needs of any human being. किसी भी human being को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, और थर्ड वन इज उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो हम चीज़ें बनाते हैं उनको बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। मैन नीड्स शेल्टर, सो ही मेक्स होम्स। हमें रहने के लिए जगह चाहिए होती है तभी हम घर बनाते हैं। मैन ऑल्सो नीड्स क्लोथ्स, फर्नीचर, पेपर, बुक्स एंड मच मोर। हमें चाहिए होते हैं कपड़े, फर्नीचर, पेपर, किताबें और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है रोज़ाना। To live our life comfortably we need so many other things, okay? So those things human create by themselves, and that is why those things are known as man-made things. Man needs transport to move. अभी हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड मेकिंग कार्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा, शिप्स, एरोप्लेन्स, ओके। एंड मैन हैज़ मेड ऑल दिस फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, सपोज कार हो गया, फर्नीचर हो गया, हाउस हो गया, ये सारी चीज़ें हमने किसके मदद से बनाई हैं? ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल थिंग्स जो है उनका इस्तेमाल करके बनाई हैं। बिकॉज टू मेक कार वी नीड मेटल एंड वी गेट दैट मेटल फ्रॉम द नेचर ओनली। हमें कार बनाने के लिए स्टील की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है। तो हम ये जो स्टील है, वो आयरन है, वो कहाँ से पाते हैं? वो हम नेचर से ही पाते हैं, ओके। हाँ, फिर हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत है। वी नीड वुड टू मेक फर्नीचर। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द वुड? we can get wood from the trees, and trees are nothing but the natural things. So ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए मैन मेड चीज़ें जो है वो हम किससे बनाते हैं? वो भी चीज़ें हम नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके ही बनाते हैं। See, here are the few pictures of the man-made things. House, it is been made by human beings, है ना। That is why house, आपने देखा है घर कभी पहले से ही बना हुआ बिना ह्यूमन बींग्स के? कैन वी क्रिएट हाउस? या मदर नेचर से कभी अपने आप घर आते हुए देखा है क्या? बनते हुए देखा है क्या? अपने आप नहीं बनता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मैन मेड थिंग। हाउस, फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री इज ऑल्सो मैन मेड थिंग बिकॉज ह्यूमन बींग्स क्रिएट फैक्ट्रीज, दे मेक फैक्ट्रीज। रोड्स, okay, to travel we need roads. To travel on land we need roads, and these roads are being created by human beings. ये जो है ये man made thing में आता है। फिर bridges, to cross any river we need to build bridge over that
river. This is also man-made thing. Although river is the natural thing, ये जो river है वो natural thing है, ये nature से gift में आया है, हमने किसी ने बनाया नहीं है इसको, वो अपने आप ही बन गई है. बट उसके ऊपर का जो ये ब्रिज है दैट इज़ बीन मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द मैन मेड थिंग. रेलवे ट्रैक, डैम, okay, these all are the man-made things. In this way we have completed with this chapter, and now we will move on to the exercises related to this chapter. So very first exercise from this chapter is fill in the blanks using correct options. फर्स्ट, अर्थ हैज़ डायमीटर ऑफ रफली डैश डैश. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए एंड आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ 13,000 किलोमीटर. सो अर्थ हैज़ डायमीटर ऑफ रफली 13,000 किलोमीटर. अर्थ की जो डायमीटर है वो कितनी है, कितनी लंबाई की है, 13,000 किलोमीटर लंबाई की है. सेकेंड, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर नोन एज, द करेक्ट ऑप्शन इज एटमॉस्फेयर. जो अर्थ के आजू बाजू एयर की जो लेयर बनी हुई है, सतह बनी हुई है एयर की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. थर्ड वन, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डैश डैश, nitrogen, carbon dioxide and other gases. So we have to name the one missing gas from the earth's atmosphere, and the name of that gas is oxygen. ये जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसमें कौन से गैसेस पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, और उसमें से एक मेन गैस मिसिंग है विच वी नीड टू ब्रीथ, एंड दैट गैस इज़ नोन एज ऑक्सीजन. ये जो ऑक्सीजन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये एक ऐसा वायु है, एक ऐसा गैस है जो हम ह्यूमन बींग्स को, बाकी एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीदिंग के लिए. B, look at the picture and complete the word under it. We have to see the picture and we have to complete the word, or we have to guess its name. So if you look at this picture carefully, this is the picture of the factory. So write down the name factory. This picture is of which thing? It is the man-made thing, and the name of this thing is bridge. Okay. And the third picture, if you see it carefully, it is the picture of the dam. We build dams on the river so that we can store water. जो ये डैम होते हैं वो हम क्या करते हैं, रिवर्स के ऊपर हम डैम बनाते हैं ताकि हम जो पानी है वो क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं या रिजर्व कर सकते हैं, पानी को जतन करने के लिए पानी का, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं. Question C. Fill in the blanks using the words given in the box. We have to fill up all these blanks with the help of the options which are given in the help box. First one, plain, mountains and valleys are dash dash. So as we discussed in this chapter, plain, mountains and valleys are known as landforms. Question 2, oceans, seas and rivers are dash dash. Ocean, seas, rivers are known as water bodies. Third one, the earth has more water than land. Okay, the earth has more what? The earth has more water than what? Than land. हमारी जो ये अर्थ है उसके ऊपर ज़्यादातर हिस्सा पानी में घिरा हुआ है, और पानी का है किससे ज़्यादा है, लैंड से ज़्यादा है. पानी वाला हिस्सा ज़मीन वाले हिस्से से ज़्यादा है. तो अर्थ के ऊपर पानी वाला हिस्सा ज़मीन से ज़्यादा है, ये इस लाइन का मतलब है. क्वेश्चन 4, अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ. सो द मॉडल ऑफ अर्थ इज़ नोन एज ग्लोब. सो ब्लैंक स्पेस ओवर हियर विल बी फिल्ड विद द वर्ड ग्लोब. Question 5, we live on the dash dash. We live on the earth. Now question D, answer the following. So in this question we have to answer these questions in full sentences or in detail. Question 1, what are natural things? Give 2 examples. So we have to explain
what is mean by natural thing, and then we have to give 2 examples. यहाँ पे हमने बताना है natural thing किसे कहते हैं और उसके 2 उदाहरण देने हैं. Natural things are those things which are nature's gifts, and these things cannot be created by humans. Examples are mountains, oceans, etc. So जो चीज़ें हमें नेचर से गिफ्ट में मिली है और जो चीज़ें हम अपने आप बना नहीं सकते, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स. क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट? सो यहाँ पे बताना है कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं? द लार्ज ग्रीन एरिया ऑन द अर्थ दैट आर कंप्लीटली कवर्ड विद द trees are called forest. So the large green area on earth which is been completely covered with the trees, that area is known as forest. जो बहुत ही बड़ा हरा भरा एरिया होता है, जो पूरी तरह से पेड़ों से ढका हुआ होता है, उस वाली जगह को क्या बोलते हैं? हम फॉरेस्ट या जंगल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. जो हमारी अर्थ है उसके आजू बाजू जो हवा की सतह बनी हुई है, एयर की जो सतह बनी हुई है, लेयर बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. Then the 4th one is, what are man-made things? Give 2 examples. The answer is all the things which are made by humans by using natural things are known as man-made things. Examples are bridge, house, etc. So things which we humans create by ourselves, those things are known as natural things. जो चीज़ें हम मनुष्य बना सकते हैं अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? हम उन सब चीज़ों को हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं. और एग्जांपल्स क्या है? रोड, ब्रिज, हाउस, स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कार. ओके, देन there are few more questions from this chapter which are not given in the exercises. Question 1, Earth's surface is divided into how many parts? What are those parts? So हमें बताना है कि अर्थ की जो सरफेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और उन पार्ट्स के क्या क्या नाम है. ओके, सो अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दोज आर वाटर एंड लैंड. ये जो अर्थ है इसके 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. अर्थ के 2 हिस्से बने हुए हैं. पहला वाला हिस्सा है पानी वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा है ज़मीन वाला हिस्सा. ठीक है. Question 2, what are the different types of landforms? In this question we have to give the names of different types of landforms. Landform कौन से types है वो बताने हैं. Answer, the different types of landforms are hills, valleys, mountains, plateaus and plains. Okay, तो landforms के कौन से types है? हिल्स, ओके, पहाड़, छोटे वाले पहाड़. माउंटेन्स, पहाड़. वैलीज मतलब खाई. प्लेट्यूज और प्लेन्स. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज? वी हैव टू नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज आर लेक्स, ponds, rivers, seas and oceans. Question 4, name the gases which are contained in Earth's atmosphere. So we have to name the gases which are there in the Earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर में वातावरण, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, हमारे वातावरण में, अर्थ के वातावरण में कौन से गैसेस पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं. So the examples are, the name of those gases are, Earth's atmosphere contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and small amount of other gases. Okay, so in this way we have done with the exercises from the chapter number 15, our earth. Okay, I hope you have liked
this chapter very much because it is very very informative and it gives lots of information about our planet earth. हमारी जो ये धरती माता है इसके बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत सारी जानकारी हासिल की है. तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये मदर अर्थ के बारे में इतने सारे जानकारी हासिल करके. ओके, सो if you have any doubts or queries from this chapter, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.